Assalamu alaikum dear students. Today's topic is volume and surface area of cylinder. It's a cylinder. This is cross-sectional area of the cylinder, which is a circle shape, and this much is height of the cylinder. This length is radius of the base circle, and this is the height of the cylinder, right? How to find out volume of a cylinder? First of all, we will calculate the area of the cross section, right? Area of the cross section, and this is also named as the base, and the base of the cylinder is a circle. तो इस सर्कल का पहले हम एरिया फाइंड आउट कर देंगे with this formula pi r square, then this area multiplied by height of the cylinder. इस तरह से हमें ये वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, right? For example, if the radius of this base circle is 4 centimeter and height of the cylinder is 9 centimeter, how to find out volume of the cylinder? तो देखिए, वॉल्यूम हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि पाई आर स्क्वायर, पाई मीन्स 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, आर इज 4, सो 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द सिलेंडर, दैट इज 9. नाउ वी सिंप्लीफाई इट. दिस इज 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर कम्स 16 मल्टीप्लाइड बाय 9. It is equal to, this is 452.57 centimeter cube, and this is nearly equal to 453 centimeter cube to 3 significant figures, right? How to find out surface area of a cylinder? देखिए, यहाँ पर ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 2 pi r into r plus h. ये हमने कैसे हासिल किया? Just like as we have found surface area of the prism. उसमें किस तरह हमने किया था? डबल ऑफ द बेस एरिया, और फिर उसके साथ हमने एडअप कर दिया था क्या? पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. तो यहाँ पर देखिए, ये है डबल ऑफ एरिया ऑफ दिस बेस सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो इसमें 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, तो ये कैफियत बन गई. And to make easier to calculate and to make easier to memorize, हम इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे. सो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is equal to 2 pi r into r plus h. अब हमारे पास जो यहाँ सिलेंडर है, इसका हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं. तो पुटिंग द वैल्यूज, दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r is 4 into 4 plus 9 equal to 176/7. ये इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया. 176/7 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 9 का सम अप करेंगे तो आएगा 13. अब इसे सॉल्व करते हैं. दिस इज
326.857 centimeter square, which is nearly equal to 327 centimeter square to 3 significant figures, right? This way we have found the surface area of the cylinder. Now we find out surface area and volume of another cylinder. यहाँ पर dimensions हैं. The diameter of the base circle is 1.2 meters and the height of the cylinder is 4 meters. तो सबसे पहले हम इसका फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम. सो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट. सो बेस एरिया है सर्कल, तो सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए होता है आर. तो आर हो जाएगा हाफ ऑफ द डायमीटर. सो दिस वुड बी 1.2 डिवाइडेड बाय 2 कम्स 0.6 मीटर्स. अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर. सो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर. आर है हमारे पास 0.6, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज 4. अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए. इक्वल टू 88/7 मल्टीप्लाइड बाय 0.36 which is equal to 4.5257 meter square, and to 3 significant figures it would be 4.53 meter square to 3 significant figures, right? Now we find out its surface area. This was the formula for surface area of the cylinder. हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं. Now this is surface area equal to 2 pi r. R is half of the diameter, that is 0.6 into 0.6 plus 4. Now we simplify it. It's equal to 17.348 meter square, and to 3 significant figures this is 17.3 meter square, right? This way we have found the surface area of the cylinder. Hope you have got it. See you in the next lesson. Allah Hafiz. Assalamu alaikum dear students. Today's topic is surface area of prism. It is a right prism. We have to find out its surface area. इसमें देखिए the pentagon is the base area of it, right? और ये है इसकी height of the prism is 4 centimeter. तो इसमें हम बेस एरिया का डबल और फिर पेरीमीटर ऑफ द बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द प्रिज्म, इन दोनों को हम सम अप कर देंगे. इस तरह से हमें सरफेस एरिया मिल जाएगा. सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म हमें हासिल हो जाएगा. नाउ टू फाइंड इट आउट we draw the net of this right prism.
वी हैव ड्रॉन नेट ऑफ द प्रिज्म दिस वे। यहाँ देखिए कि यहाँ से इस पॉइंट तक दिस इज पेरीमीटर ऑफ द बेस। 5 + 6 + 6 + 6 + 5। यहाँ देखिए प्रिज्म के अंदर मैं इसको क्लियर करता हूँ। ये देखिए यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो 5 + 6 + 6 + 6 + 5 लेंथ ऑफ द बाउंड्री लाइन मीन्स द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इस तरह से हम देखते हैं। देन ये है हाइट ऑफ द प्रिज्म, और हाइट ऑफ द प्रिज्म नेट के अंदर जहाँ शो की गई है दिस इज हाइट ऑफ द प्रिज्म, राइट। अच्छा, अब हम इसका सरफेस एरिया जब फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले बेस एरिया फाइंड आउट करके, बेस एरिया क्या बनेगा, दिस वन 6 मल्टीप्लाइड बाय दिस 6, यानी ये एक स्क्वायर शेप बन रही है और ऊपर का ये ट्राइंगल अलग कर दिया हमने, ठीक है। वैसे तो टोटल जो बेस एरिया है दैट इज ऑफ द शेप ऑफ पेंटागन, तो उसमें ट्राइंगल हम अलग कर देंगे, उसका अलग से एरिया फाइंड आउट करेंगे और एरिया ऑफ दिस स्क्वायर अलग से फाइंड आउट करेंगे, उनको ऐड अप कर देंगे फिर। अच्छा, यहाँ देखिए इसकी डिटेल कैसे है। इन दिस ट्राइंगल दिस is working as base, which is 6, and base of the triangle, and this much is working as the height of the triangle, which is 4 centimeter। तो हम अब फाइंड आउट करते हैं surface area of the prism। Now watch how we will find out the surface area of a prism। Surface area of a prism is equal to double of the base area of the prism plus perimeter of the base multiplied by height of the prism। इन दोनों को हम सम अप कर देंगे तो सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म फाइंड आउट हो जाएगा। अब इस राइट प्रिज्म में देखिए, पहले बेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम बेस को दो हिस्सों में करके और उसका अलग अलग हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर उनको सम अप कर देंगे। दिस इज स्क्वायर शेप, वील फाइंड आउट इट्स एरिया मीन्स 6 स्क्वायर, और उसमें प्लस कर देंगे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए फिर उसको करेंगे डबल। अब इधर हम इसे फाइंड आउट करते हैं, तो पहले एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर प्लस in the triangle the base means 6 multiplied by 4 the height of the triangle and divided by 2। ये हो गया बेस एरिया और इसका हमें करना था डबल। नाउ वी add the product of perimeter of the base and the height of the prism। तो perimeter of the base कितना आता है, देखिए perimeter of base यहाँ देखिए this is 5 + 6 + 6 + 6 + 5, so 5 + 6 + 6 + 6 + 5 multiplied by height of the right prism which is 4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वल टू दिस इज 36 प्लस 12 प्लस 28 multiplied by 4 equal to this is 48 in multiplication with 2 plus 28 multiplied by 4 equal to double of 48 is 96 plus 112, इन्हें सम अप कीजिए, ये होता है
208. 208 centimeter square is the surface area of this right prism. Right? इस तरह से हम जितनी भी प्रिज्म्स का हमें फाइंड आउट करना होगा सरफेस एरिया, हम इसी मेथड से वो फाइंड आउट करेंगे. राइट? होप यू हैव अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. बाय.